آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں، ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور آگے کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد؟ نہیں میرے بھائی، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا، اس نے جو آ کے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ دوستو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ امتحان ختم نہیں ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، آزمائش تھی۔ شہر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں واسطے نے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا بھی تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ اور عرض کیا مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میری ایک درخواست ہے، یا اللہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا دوست، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، آپ امام الانبیاء، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس یثرب عبد المطلب کے ننہال آئے، اور وہاں آئے، اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند دن بعد انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا، اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر لوٹ آئے واپس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا، آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا،
वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को भी पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और माँ बेटे में खूब सी गई दो एक बातें की, फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयद आमना के मज़ार पे 2 दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफ़ा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयद आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। भाईजान, आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम रुखसत होने लगे तो मैंने कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था। मैंने कहा आओ बिछड़ते हैं, आओ पलट के देखते हैं। हम बिछड़े, हमने पलट के देखा, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी आंखों के सामने आई। फिर मुकाम बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आ गई और पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। 6 साल की उम्र में माँ अबवा के टीले पे खामोश हो गई। फिर कफालत का जुम्मा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहाँ बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादा की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई, गम की कहानी टूटी नहीं भाई, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे कि आपके मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा है और पीछे पीछे मेरे रसूल हैं, और आप अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत की, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीका हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। कौम के रवैये बड़े तलख थे। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, गड़े खोदते हैं, उजरियाँ फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। बड़े दुख दिए मक्के वालों ने यार, आमुल हुज़्न आया। शब अबी तालिब में 3 साल मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। मैंने एक सहाबी का बयान पढ़ा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, इन राहों पे चलने वालों को दुखों से 2-4 होना पड़ा। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत के तुमने उसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज़्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। जवानों सुनिएगा, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और ओबाश लड़के, उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, और हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ
तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है, जवानों इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है, ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, सच आखी ते पामड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी कुसैली थी, मैंने बरमला बरजस्ता कहा कि हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेके ताइफ आए, उन्होंने पत्थर मारे, अर्ज किया गया कि बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, बाज का जो नताइज होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो बाज का दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं क्योंकि रवैये इतने तलख होते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ से ही काम ही करना है, लाहौर में नहीं तो कहीं मुरीद के चले जाएंगे, गुजरावाला चले जाएंगे, मुल्तान चले जाएंगे। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है कि बाज का नताइज जो होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रगे हैं। उस समाज आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहां 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफर किया, अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस जवान को आज जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। तो फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज्जत देता है ना, अल्लाह उन्हें आजमाता भी है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अब्वा के टीले पे माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में शफीक मेहरबान दादा जान चले गए और चचा ने कफालत का जुम्मा लिया। मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर हम पढ़ते हैं। हुजूर जब मक्का तशरीफ लाए, उम्मे हानी का घर है, हुजूर माहवे इस्तराहत है, आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरबट में भेज दिया कि जाओ जबरील और मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया भी जाता है। और ये एजाज हुजूर का कि हुजूर ने सर की आंखों से अपने रब का जमाल देखा। जबरील हाजिर खिदमत हुए, मालिक दस्तक दूं, फरमाया नहीं ले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है। फरमाया छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो, उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के हैं 600 नूरी पार, एक पार खोले जमीन व आसमान को ढांप ले। आज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, सिमट के आए, दुनिया वालों को तालीम दे गए कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कादमे है। कब्बिल बाबे तफ़ाइल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कादमहू वाहद का सीगा नहीं, तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों की बात की है। तकाजा एक बार का नहीं, बार बार का है। जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस हैं। मेरा विजदान कहता है आरज़ू ज़रूर मछली होगी कि या अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं, क्योंकि न जन्नत की कलियों में देखा मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। हुजूर बेदार हुए, अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। शक सदर हुआ, हुजूर बुराक पे तशरीफ़ फरमाए हुए और मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले आते हैं। सुनिएगा दोस्त और ध्यान से सुनिएगा, जब हुजूर बुराक पे बैठे ना तो हुजूर को उम्मत याद आ गई और हुजूर की मुबारक चश्मान से आंसू बह निकले। हुजूर ने इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाई। आए रहे, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए तो उस वक़्त भी उम्मत के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहता जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया ना तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। और दोस्तों जब अज़ाब की आयतें उतरी ना तो मेरे नबी का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार किया, हुजूर तशरीफ़ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो तो यसरब था,
बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए, वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबल सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए, आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, अर्ज किया हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, बिलाल मदीने की गलियों में तड़प रहा है, मिंबर उदास है, तशरीफ लाइए, अल्लाह उम्मत से भला फरमाएगा। लेकिन हुजूर फरमाते अबू बकर मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है, और फरमाया मैं मोहम्मद उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। सुनिएगा दोस्त, हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती है। रावी लिखता है जब सैयदा घर से चली तो आपके सर पे जो रिदा थी ना उस पर 14 पैबंद लगे थे। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रिदा और उस पर 14 पैबंद लगे हैं। आप गार की तरफ बढ़ी, साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अर्ज करती अबू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। हुजूर बेटी से भी फरमाते बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। जवानों जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया दोस्त, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदुम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल कर लिया है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और भाईजान यहाँ रुकिएगा सिर्फ 2 लम्हों के लिए, अगर तखय्युलात में गोता लगे मैं और आप खुद को खींच के थोड़ी देर के लिए उस गार में ले चलें, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत कहते अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। माजरत से कहूँगा ये नारे खोखले हो गए, रसूलुल्लाह ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसके सिले में क्या दिया? जवानी को दीवानगी का नाम दिया गया। आज जवानियां चौंक चबारों फट्टों की जीनत बनी, रक्स व सरूद की महफिलें सजाने में लग गई। आज जवानियां कहां गुजरी? हय्या अला सलाह की सदाएं 5 वक्त फिजा में गूंजती हैं, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है गफलत की पट्टी नहीं उतारते, और अल्लाह का मुनादी 5 वक्त बुलाता, किसको परवाह होती है? और मोहब्बत तो अमल मांगती है। मेरे नबी मेराज की शब रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाने लगे, बुराक पे बैठे तो उम्मत की मोहब्बत में आंखों में आंसू आ गए। मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, वहां नबियों को इमामत का शर्फ मिला। फिर वो नूरी सीढ़ी 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पर, और फिर जबरील के परों पर, फिर रफ आया। फिर हुजूर फरमाते ये 5 मराहल और 6ठा मरहला। हुजूर फरमाते फिर आवाज़ आई प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते 1 कदम उठाया। सफ़र कितना तय किया? जितना 5 मराहल में तय किया, 1 कदम उठाता हूँ तो इतना सफ़र तय कर लेता हूँ। आवाज़ें आती गई, कदम उठते गए, काबा कौसैन की मंजिलें नसीब हुई। मेरे नबी कुर्बे ख़ास में पहुँचे, राज़ो नियाज की बातें हुई, मकाशफात हुए, उम्मत के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। मेरे भाई जहाँ जब कुर्बे ख़ास में मेरे रसूल पहुँचते हैं तो अल्लाह फरमाते महबूब आपको किस चीज़ से मुशर्रफ़ किया जाए? तो हुजूर अर्ज़ करते अल्लाह तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। और फिर वहाँ राज़ो न्याज की बातें जो हुई, उन राज की बातों में एक बात अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए वो हमारे तक आई। ध्यान से सुनिएगा। अम्मा आयशा फरमाती दरिया रहमत जोश में है, हुजूर ने इख्तियार दिया आयशा जो मांगोगी अता होगा। अर्ज़ की हुजूर अगर आप मुझे रुख्सत दें तो मैं वालिद गिरामी से मशवरा कर लूँ।
कहा मशवरा कराएं। सैयदा ने जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, हुजूर ने इख्तियार दिया, जो मांगोगी अता होगा। तो आपने फरमाया, बेटा हुजूर से अर्ज़ करना, मेराज की खलवत ख़ास में जो राज की बातें हुई, एक कलमा इरशाद फरमा दें। साथ वादा भी लिया कि मुझे भी बताना है। आपने आके अर्ज़ किया तो हुजूर फरमाते, आयशा सुनो, उन राज की बातों में एक राज की बात, ध्यान से सुनिएगा। फरमाया, जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा। सैयदा ने जाके वालिद गिरामी को बताया तो आप फूंट फूंट के रोने लगे। अर्ज़ किया, बाजी ये रोने वाली बात तो नहीं, ये तो खुशी वाली बात है। तो आप फरमाते, दूसरा रुख भी देखो, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। आज हम दिल तोड़ते हैं कि दिल जोड़ते हैं? सुनिएगा जी, ये दूसरी तरफ कहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आज हम माज़रत से कहूँगा, हमारी ज़ुबानें जहर उगलती हैं। आज हम रिश्ते जोड़ते नहीं, हम रिश्ते तोड़ते हैं। बड़े लोग मिलते हैं, फ़ख्र से बताते हैं 30 साल हो गए भाई को मुंह नहीं लगाया। छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी ना, बच्चों पे लड़ पड़े, और फिर 30 साल आपस में कलाम ही नहीं किया, और फिर कलाम ना करके भी फ़ख्र करते हैं। मरना जीना खत्म कर लिया, थूक के चटते नहीं, क्या कुछ नहीं कहते दोस्त से। मैं कहता हूं यार, 30 साल से भाई भाई से नाराज है, कभी माजी के दरीचों में बचपन तलाश नहीं किया? वो प्यार की कहानी, वो नगमे याद नहीं? उंगली थाम के स्कूल जाना, एक बिस्तर में जो है वो घुस जाना, एक बर्तन में बैठ के खाना खाना, और एक दूसरे के लिए दीवार बन के खड़े हो जाना। हमने छोटी छोटी बातों पे नाराजगी दी, और फिर 30 साल भाई ने भाई को मुंह न लगाया। ये तो भाई है ना। हमने ऐसे नालायक औलाद भी देखी है, बकायदा अपने बूढ़े माँ बाप से कहा कि मरना जीना खत्म किया है। वो कहते, तू मर गया तो हम नहीं आएंगे, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। और हम ऐसी नालायक औलाद को जानते हैं। बाप का लाशा घर में पड़ा है, मोहल्लेदार कहते हैं, पुत्र जाके गुस्ल दिया, उसकी आखिरी दफा उसका मुंह देख ले, कंधा दिया, उसकी कब्र पर मिट्टी डाला है, उसकी कब्र पे 2 आंसू बहाया। वो कहता है, बाप से वादा किया था, आप मरोगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। हमने ऐसी सफाक और नलायक औलाद भी देखी। ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना ज़कात कबूल होगी। अगर ये बूढ़े माँ बाप हमसे नाराज हुए, इन्हें देहातों में छोड़ाए, ये सदका और खैरात खाने पे मजबूर हुए, ये भीख मांगने पे मजबूर हुए, हमें दावरे माशर माफ करेगा? छोटी छोटी बातों पे भाइयों ने भाइयों से आपस में नाराजगी पार रखी है, और फिर संभाल के भी रखी है। कल को बेटी का निकाह करने मेरी जरूरत पड़ेगी, जाहिर है हमारे यहाँ शरीका बरादरी, और फिर जब रिश्तेदारी नहीं जुड़ती है तो लोग सवाल भी तो करते, भाई नहीं आया, चचा नहीं आया, और वो नाराजगी संभाल कर, और ये भी अल्लाह की रजा के लिए जाके माजरत नहीं करता, और ना वो अल्लाह की रजा के लिए उसके पास आता है, वो ठुडे मार के उठाता है। अच्छी तरह जब वो रुसवा करके कलेजे में ठंड नहीं पड़ती उतनी देर तक वो भी नहीं राजी होता, और वो भी नाक बचाने के लिए, वो भी जलील करने के लिए आया। रज़ा इलाही कहां गई यार? हजरत हनफिया भाई से नाराज हुए, सुलह के लिए गए, तो रास्ते में से होके वापस आ गए। आगे भाई को खत लिखा कि भाईजान मैं आपकी तरफ ही आ रहा था सुलह के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया कि जन्नत में वो पहले जाएगा जो सुलह में पहल करेगा। कहा भाईजान आप बड़े हैं, मेरी आरजू है कि जन्नत में आप मुझसे पहले जाएं, और आप आएँ और मेरे साथ सुलह फरमा के मुझसे पहले जन्नत में तशरीफ़ ले जाएं। और भाई माफ़ करने वाला मिजाज रखो, दरगुजर वाली तबीयत रखो। और मेराज की शब, ये राज की बात। और दूसरी बात, उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा मिला। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे उम्मतों का तजर्बा है। 3 नमाजें फ़र्ज थी, वो 3 नहीं पढ़ते थे। अर्ज़ की ये 50 नहीं पढ़ेंगे, आप कमी की दरख्वास्त करें। हुजूर 9 दफ़ा गए, जब 5 रह गई तो अर्ज़ की हुजूर आप तशरीफ़ लेके जाएं दोबारा। फरमाए अब अल्लाह से हया आता है। सुनिएगा भाई, कहा अब अल्लाह से हया आता है। और उम्मती ने क्या कहा? एक चक्कर लगता तो जान छूट जाती। और भाई आज किसी को नमाज की दावत दी जाए तो वो कहता कि तू मेरे कपड़े नहीं पाक, कपड़ों की कहानी नहीं, मन गंदे हैं भाई। और कुछ लोग कहते मेरे हिस्से की पढ़ाया, और कुछ लोग ज्यादा जुबान चलाए तो वो कहते मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चराग हो, चराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तिफादा नहीं करता तो ना करे, आप कर लो। कभी मौलवी ला के खड़ा कर दिया, कभी पीर ला के खड़ा कर दिया, आएगी तो वेखी जाएगी। ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। हमने इस तोहफे की क्या भाई? एक घर में 8-8 अफराद होते, सब पे नमाज फर्ज है। कितने लोग नमाज के वक्त आते हैं?
میں اور آپ اگر اپنی نمازوں کا شمار کریں، ناراض نہ ہوئیے کہ میرا تلخ لہجہ ضرور ہے لیکن اس میں بے پناہ محبتیں بھی ہیں، میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے ہم بتا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس ایک عید کی نماز، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فخر سے بتاتے ہیں کہ جمن تو لے کے ہون تک کبھی مسجد نہیں گیا۔ آج سجدہ نہیں نہ کریں گے بھائی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو۔ اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، آج ہی سجدہ کر لے، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے دوست سجدہ نہیں ہوگا، کمریں یوں اکڑ جائیں گی۔ سنیے گا بے نمازی کو کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ قارون، حامان، اور جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو نماز کا ٹائم تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گیا، چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا، اور آواز تھی کہ تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی، اور ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی۔ قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا بھائی۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، گھبرائی ہوئی ہے، عرض کرتی حضور 3 گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے، مجھے پاک کیجئے۔ سنیے گا اس کے 3 گناہ، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا۔ دوسرا گناہ اس نے عرض کیا حضور میں حاملہ ہوئی، بچہ ہوا تو میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تیسرا گناہ اس نے کہا میرے پاس سرکے کا مرتبان، میں نے اس بچے کو اس مرتبان میں پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی۔ 3 گناہوں کا اظہار ہوا۔ میرے نبی 3 گناہوں کی سزا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تجھے رجم کیا جائے گا، تو شادی شدہ ہے، تو نے زنا کا ارتکاب کیا۔ دوسرا فرمایا تو نے ایک انسان کو قتل کیا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ۔ 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے خاتون تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو۔ اور ہماری کتنی قضا ہوتی ہیں بھائی۔ سری سکتی بہت بڑا نام گزرا ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوران تدفین نماز عصر قضا ہو گئی، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے۔ میرا بیٹا چلا گیا تو سارے شہر نے افسوس کیا، میری نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا۔ ہمیں کبھی افسوس ہوا بھائی؟ صبح سے شام تک 5 نمازیں ہمارے اوپر، ہم نے اس کے حضور سجدہ کیا؟ آؤ بھائی آج کس بزم میں یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے گا اور اللہ سے وعدہ کیجئے گا کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔